Hospitals. It is an honor to moderate today's session on an incredibly important topic: common prescribing and administration errors in antibiotics, opportunities for pharmacist intervention. As we know, this is a crucial topic as errors in antibiotic use can significantly impact patient safety and contribute to antimicrobial resistance, a growing global health challenge. Pharmacists, as integral members of the healthcare team, plays a critical role in identifying and addressing these errors. And for this important session, let's introduce our esteemed speaker, Ms. Sundis Maria, who is working as an assistant manager clinical pharmacy at Shifa International Hospitals. She holds the prestigious SIDP certification and is also board certified infectious disease pharmacist. With her vast expertise in clinical pharmacy and infectious diseases, she has made significant contributions to antimicrobial stewardship. Her session will shed light on common prescribing and administration errors related to antibiotics and highlight how pharmacists can intervene effectively to prevent these errors and support the fight against antimicrobial resistance. Before we begin, I encourage you all to actively participate in this session. Feel free to ask questions, share your thoughts, and engage in the discussion through Q&A chat box. Let's make this session as interactive and enriching as possible. Please avoid irrelevant questions. Without further ado, I invite Ms. Sundas Maria to take the lead and share her insights with us. Over to you, Ms. Sundas. Thank you, Noor, for the kind introduction. Assalamu alaikum, everyone. So today's session, as Noor has already mentioned, it focuses on the common prescribing as well as administration errors. The learning objectives are what are these common antibiotic administration as prescribing errors? इनका potential impact क्या पड़ता है और कहाँ पे opportunities हैं कि pharmacist intervene करे. So before I begin this session, it is important to realize to err is human, and we know that no system is entirely perfect and errors are not inevitable. We want to identify कि errors कौन से हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, and we want कि इस तरह की strategies develop की जाए जो कि इन errors को ना होने दें future में. एंटीबायोटिक्स जो हैं ये एक कॉमन क्लास है और इस वजह से जो एरर्स हैं वो भी कॉमन हैं जो कि इनके साथ एसोसिएटेड होते हैं. And the doses adjustments are often complex. They have different dosing requirements based on different patient factors, जिसकी वजह से एरर्स के चांसेस भी बढ़ जाते हैं. Now let's begin with the common prescribing errors. सबसे पहला एरर तो यही है कि आपने एंटीबायोटिक जो है वो गलत प्रिस्क्राइब कर दी. So incorrect antibiotic choice. Then come the dosing errors, the frequency errors, duration of therapy, ignoring the pharmacokinetic and dynamic principles, जिसमें सबसे ज़्यादा common reason होता है lack of tedium. And overlooking the patient specific factors, जैसे कि renal hepatic impairment है, interactions हैं, comorbids हैं. Last but not the least, antibiotics associated adverse drug reactions. So let's start with the first one, which is incorrect antibiotic choice. और इसमें सबसे पहली जो चीज दिमाग में आती है, that is the bug drug mismatch. कि therapy जो है, that is not according to the cultures. लेकिन इसमें और भी काफी चीजें हैं, जैसे कि हो सकता है कि कल्चर के अकॉर्डिंगली आपने प्रिस्क्राइब की है एंटीबायोटिक, लेकिन आपने रेजिस्टेंस मैकेनिज्म को दिमाग में नहीं रखा, तो जो एजेंट था बिकॉज इट वाज प्रोड्यूसिंग सम सॉर्ट ऑफ एंजाइम, तो अल्टीमेटली जो एजेंट था वो रेजिस्टेंट हो गया बिकॉज द बैक्टीरिया वाज प्रोड्यूसिंग सम बीटा लैक्टोमेज, or you were not considering the allergies, or you were overly prescribing the broad spectrum antibiotic. So it is not always about the culture directed therapy.
So this is an example which I'm sharing. इसमें you can see कि एक blood culture है जिसमें E. coli XTR जो है वो grow कर रहा है. As you can see कि इन्होंने जो report share की है इसमें majority of the agents are resistant. And when you correlate it with the medication ordering record, तो उसमें जो antibiotics हैं अगर आप देख सकते हैं, there is voriconazole, amikacin and ceftazidime avibactam. तो एक सरसरी सी नजर डालने पे तो आप कह सकते हैं कि yes, this is inappropriate because Zevicefta is resistant in the culture and sensitivity report, so it should not be given. So yes, this is correct. You can discontinue it. But what if this bacteria is producing an enzyme which is New Delhi metallobeta lactamase, और आप साथ में एस्ट्रियनाम भी दे रहे हैं. So in that case, it would be justified. So you need to understand the resistance mechanisms as well. And then there's another thing which I would like to add here is कि कुछ हॉस्पिटल्स में जो कल्चर एंड सेंसिटिविटी रिपोर्ट है उसमें MICs भी साथ में दी जाती हैं. But you cannot solely rely on the MICs and they are often misguiding for the prescribers. हो सकता है कि MIC कम है for a certain agent, but जिस साइट के लिए आप वो प्रिस्क्राइब करना चाह रहे हैं वो वहां पे एंटीबायोटिक कॉन्सेंट्रेट नहीं होती. सो इन दैट केस इवन इफ यू हैव एन एजेंट जिसकी MIC जो है वो इतनी कम नहीं है लेकिन वो उस साइट पे जाके कॉन्सेंट्रेट हो रही है, so you can go with that agent. So MICs are not entirely reliable. So this is a case. इसमें microbiology results आए हैं after 48 hours और sputum culture है उसमें Enterobacter grow कर रहा है. जब उसकी susceptibility testing की गई तो it was sensitive to ceftriaxone, ceftazidime, piperacillin tazobactam and meropenem. So these are the only 4 agents जो कि sensitive हैं. So which antibiotics should be initiated? And I want you to answer me in the chat box. आपके ख्याल में इन 4 एंटीबायोटिक्स में से कौन सी एंटीबायोटिक देनी चाहिए based on the susceptibility pattern? Okay, so no one is answering. I guess I should carry on. The agent would be, अगर तो आप sensitivity को देखें तो I think some of you might consider ceftriaxone, क्योंकि सीधा सीधा जवाब है कि ceftriaxone जो है वो sensitive है, but that is not the case because Enterobacter produces an enzyme which is AMP-C beta lactamase. तो अगर ये एंजाइम प्रोड्यूस होगा तो अल्टीमेटली एंड स्पेशली दिस प्रोडक्शन इज ट्रिगर्ड व्हेनेवर इट इज एक्सपोज टू डिफरेंट सेफलोस्पोरिन्स जो कि थर्ड जनरेशन सेफलोस्पोरिन्स हैं सेफ्ट्राइक्सोन, तो अल्टीमेटली एंटेरोबैक्टर रेजिस्टेंट हो जाएगा. सॉरी, द एंटीबायोटिक वुड बी रेजिस्टेंट. तो इस केस में यू शुड ऑलवेज गो फॉर द फोर्थ जनरेशन सेफलोस्पोरिन्स और इवन ब्रॉडर स्पेक्ट्रम एजेंट्स जैसे कि पिपरासिलिन टेजोबैक्टम है. So the right option is Piptaz. Meropenem would be too broad spectrum. इसलिए Piptaz is the right option in this case. So the whole point of this discussion is that culture and susceptibility report is not the only answer. You have to consider कि इस बैक्टीरिया के क्या रेजिस्टेंस मैकेनिज्म हो सकते हैं और जिस साइट के लिए आप उसको देना चाह रहे हैं, जिस साइट ऑफ इन्फेक्शन के लिए, क्या वो वहां पे कॉन्सेंट्रेट हो रही है या नहीं. The next common errors which we encounter are the dosing errors. Dosing errors में या तो underdosing होगी या overdosing होगी, दोनों में से कुछ भी हो सकता है. Underdosing leads to resistance because whenever bacteria are exposed to subtherapeutic doses, they become resistant ultimately. And overdosing obviously would lead to adverse reactions and toxicities. तो हमने दोनों को avoid करना है. So there's another case, a 95-year-old male which is diagnosed with sepsis due to a bloodstream infection caused by E. coli. And the E. coli has been identified as sensitive to fosfomycin. और डॉक्टर ने सजेस्ट किया है fosfomycin 3 gram IV once daily. Now, is this the correct option?
Again, you can answer in the chat box. So the recommended dose for IV fosfomycin is 12 to 24 grams per day, which is administered 8 to 12 hourly. अब जो यहाँ पे इशू हुआ है कि एक्चुअल में जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करना चाह रहे थे वो आईवी की डोज थी, उन्होंने ओरल फॉस्फोमाइसिन की डोज जो है वो गलती से मेंशन कर दी, विच इज़ नॉट अप्रोप्रिएट एट ऑल। गलती से ये ट्रांसक्राइबिंग एरर होगा, जो कि डॉक्टर ने तो कहा कि मुझे आईवी डिस्पेंस करनी है, और जो उसको एक्चुअल जो डॉक्टर ने नोट डाउन किए ऑर्डर्स वो ओरल के मेंशन कर दिए, जबकि oral fosfomycin is not recommended for treating the systemic infections because ये जाके concentrate जो है वो bladder में होती है. It is only recommended for treating the bladder infections, that is cystitis. So this is a common error जो कि हमने routine practice में कई दफा देखा भी है। अब होगा क्या कि जब ये डोज पेशेंट को मिलेगी विच इज जस्ट 3 ग्राम आईवी, जबकि इन कंपैरिजन आईवी की डोज जो एक्चुअल है दैट इज 20 up to 24 ग्राम्स पर डे, स्पेशली अगर रेजिस्टेंट इन्फेक्शंस हैं तो हम काफ़ी हाई डोज देते हैं। तो जब इतनी कम डोज आप पेशेंट को 2-3 दिन देंगे तो अल्टीमेटली जो बैक्टीरिया है वो रेजिस्टेंट हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में हमें काफ़ी इश्यूज नज़र आते हैं। अक्सर वंस डेली की डोज होती है तो उसको बीडी में दे दिया जाता है, अगर बीडी की डोज होती है उसको वंस डेली दे दिया जाता है। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द ड्राइविंग फैक्टर्स बिहाइंड दीज डोजिंग frequencies. They are the pharmacokinetic and dynamic parameters. अगर आप एडजस्ट नहीं करते फ्रीक्वेंसी, स्पेशली रीनल और हेपेटिक इम्पेयरमेंट में, तो ड्रग एक्यूमुलेशन के भी चांसेस होते हैं। सो फ्रीक्वेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो हेयर इज अनदर केस। एक फिजिशियन है जिन्होंने मेरोपेनम 1 ग्राम वंस डेली प्रिस्क्राइब किया है एक ऐसे पेशेंट में जिनकी क्रेटिनिन क्लियरेंस है 22 ml पर मिनट। आप फार्मासिस्ट हैं, आपने पेशेंट की प्रिस्क्रिप्शन को रिव्यू किया एंड यू कंसल्टेड द डिफरेंट रेफरेंसेस, और आपको पता चला कि इस क्रिएटिनिन क्लियरेंस के ऊपर मेरोपेनम की डोज जो है वो 500 mg Q12 आवरली बनती है। तो आपने जाके डॉक्टर को कॉल की और डॉक्टर ने आगे से क्या कहा कि वंस डेली डोजिंग जो है दैट इज मोर कन्वीनियंट फॉर द पेशेंट इन टर्म्स ऑफ एडहेरेंस एंड ईज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अब आप जो है वो सर पकड़ के बैठ गए हैं कि अब मैं इससे क्या बहस करूं, एंड दिस इज अ कॉमन सिनेरियो विच हैपेंस। लेकिन इसके पीछे रीजन आपको समझ आएगी तो ही आप डॉक्टर को कन्विंस कर सकते हैं। बात तो वो भी सही कर रहे हैं कि बजाय दिन में 2 दफा देने के आई वुड लाइक टू गिव दिस एज वंस डेली, बजाय 500 mg बीडी के मैं इसको 1 ग्राम वंस डेली दे दूं तो वो ज्यादा बेटर रहेगा इन टर्म्स ऑफ एडहेरेंस एज वेल एज नर्सिंग के लिए भी आसानी रहेगी कि वो एक ही दफा एडमिनिस्टर करेंगे। सो हाउ आर यू गोइंग टू कन्विंस द डॉक्टर एज अ फार्मासिस्ट? So, if you know that meropenem is a beta lactam, and beta lactams are basically time dependent antibiotics, which means जितना टाइम ये MIC से अबव रहेंगे इन द ब्लड उतने ही ज्यादा ये इफेक्टिव होते हैं, इसीलिए हम इनको दिन में 2 या 3 दफा दे रहे होते हैं। सो देयर फ्रीक्वेंसी इज यूजुअली 8 आवरली 6 आवरली, सो दैट्स द रीजन बिहाइंड द इंक्रीज फ्रीक्वेंसी। सो वाइल एडजस्टिंग फॉर द रीनल डिसफंक्शन आपने मेंटेनेंस डोज को कम करना है और आपने इंटरवल के ऊपर इतना फोकस नहीं करना। सिमिलरली इसी के साथ एक और एंटीबायोटिक की क्लास है अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, मैं उसकी एग्जांपल को कोरिलेट करूंगी बिकॉज दे आर द कंसंट्रेशन डिपेंडेंट एंटीबायोटिक्स, विच मीन्स के ज्यादा अमाउंट में ड्रग अगर एक साथ देंगे तो ज्यादा अच्छा इफेक्ट आएगा। So this is the reason behind giving them as once daily, which is the extended interval regime, as compared to twice daily, thrice daily. So prolongation of the dosing interval while keeping the larger doses is actually advantageous. But of course, keep the caveats in your mind. जैसे कि कुछ populations में ये dosing अभी भी properly study नहीं की गई, जैसे कि pregnant females में, critically ill population में,
या अगर बहुत ज़्यादा GFR कम है morbid obese पेशेंट्स में, but you can always apply these principles while you are trying to adjust the dosing. Then come the durations. Durations के ऊपर आप इंटरवीन कर सकते हैं, और ड्यूरेशंस के बारे में अक्सर डॉक्टर्स पूछते हैं कि इसको कितने दिन तक चलाएं. सो द इशू इज कि अगर तो बहुत कम ड्यूरेशन आपने दे दी किसी भी एंटीबायोटिक की, अगर तो डीप सीटेड इन्फेक्शन था, कॉम्प्लिकेटेड था, देयर इज अ रिस्क ऑफ थेरेप्यूटिक फेलियर. दीज आर द इन्फेक्शंस जैसे कि ओस्टियोमाइलाइटिस है, एंडोकार्डाइटिस है, जिसमें 4-4 हफ्ते तक एंटीबायोटिक जाती है. तो अगर आपने बहुत ही कम ड्यूरेशन के लिए एंटीबायोटिक दी तो डेफिनेटली द पेशेंट वुड बी अफेक्टेड. एंड अगर कोई ऐसी इन्फेक्शियस डिजीज है कि जिसमें शॉर्ट ड्यूरेशन का कोई एडिशनल बेनिफिट नहीं है, और अब तो बेतहाशा ऐसी स्टडीज आ चुकी हैं जैसे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हैं, कम्युनिटी एक्वायर्ड नमूनिया हैं, इसमें अगर आप लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए एंटीबायोटिक दे रहे हैं तो कोई एडिशनल बेनिफिट नहीं है, अलबत्ता नुकसान जरूर है इन टर्म्स ऑफ सी डिफ, डायरिया एंड अदर ADRs एंड कॉस्ट ऑफ द पेशेंट, जो कि अननेसेसरीली बढ़ जाती है. सो यू नीड टू कीप द होल पिक्चर इन माइंड. ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी की जब हम बात करें तो इट इज़ वन ऑफ द लीस्ट स्टडीड एरियाज ऑफ इन्फेक्शियस डिजीजेस. और जो हमारे यहाँ एक डॉक्टर्स का एक जो ट्रेंड चला आ रहा है कि मतलब इसको 5, 7, 10 या 14 डेज तक चला लें, विच इज़ नॉट कह लें कि लिटरेचर बेस्ड. सो व्हेन इट कम्स टू ड्यूरेशन, ऑलवेज रिमेंबर दैट शॉर्टर इज बेटर. हमेशा डेटा के ऊपर बात करें. अब शॉर्टर इज बेटर के ऊपर एक पूरी वेबसाइट है, इस पे जाके आप देख सकते हैं. मैंने एक टेबल शेयर किया है. तो न्यू स्टडीज आर देयर, और ये कोई आम स्टडीज भी नहीं है, दीज आर द रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स. इनकी बेस पे ये टेबल्स जो हैं वो बनाए गए हैं. सो शॉर्टर थेरेपी इज इक्वली एफिकेशियस टू लॉन्गर ट्रीटमेंट्स. Then considering the drug interactions, of course, how can we forget the drug interactions? कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जो कि सबस्ट्रेट्स के तौर पे एक्ट करती हैं, कुछ मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करती हैं, और कुछ जो है वो इंड्यूस करती हैं. इसका टेबल जो है ये इसमें आप देख सकते हैं. जो कॉमन एंटीबायोटिक्स हैं इसमें जो बहुत ज़्यादा जिनके इंटरेक्शंस हैं, इसमें मैक्रोलाइड्स हैं, एजोल एंटीफंगल्स हैं, ATT drugs हैं, antiretrovirals हैं. So while intervening, you have to keep in mind the drug interactions. So there is another case. Mr. RK has symptoms of community acquired pneumonia, जिसमें उनको फीवर हो रहा है, प्रोडक्टिव कफ है, और साथ में शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ. सो ही इज डायग्नोस्ड विद नमोनिया, एंड जो फिजिशियन है उन्होंने लीवोफ्लॉक्सासिन शुरू की है 500 mg once daily for 7 days. एंड डायग्नोसिस में जो है दैट इज लाइकली ड्यू टू स्ट्रेप न्यूमो. स्पूटम कल्चर में जो स्ट्रेप न्यूमो है वो कंफर्म हो चुका है, एंड हिज करंट मेडिकेशंस इंक्लूड द फॉलोइंग. इसमें यू कैन सी देयर इज फ्लुकोनाजोल, omeprazole, enoxaparin, paracetamol, and dimenhydrinate. So what would be the intervention in this case? So he's on fluconazole, and fluconazole is notorious for its interactions. It inhibits the cytochrome P450 3A4 enzymes in the liver, और levofloxacin भी इसी enzyme system से metabolize होती है. तो अगर आप दोनों को साथ साथ देंगे तो डेफिनेटली क्या होगा, लीवोफ्लॉक्सासिन के लेवल्स एलिवेट होंगे, और दोनों का जो एक कॉमन ADR है विच इज द प्रोलॉन्गेशन ऑफ QT इंटरवल, दैट वुड अकर. there's a high chance. So management plan would be you need to closely monitor the cardiac status, especially the ECG, and consider alternate antibiotics. If it is possible, switch it. Otherwise, closely monitor the patient. फार्मेकोकाइनेटिक एंड डायनामिक एडजस्टमेंट्स में हमारे पास जो है वो रीनल डोज एडजस्टमेंट्स हैं, हेपाटिक डोज एडजस्टमेंट्स आ जाती है, थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग, और ड्रग कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, दैट इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट.
सो रीनल डोज एडजस्टमेंट्स जो है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर डेली रूटीन। फार्मासिस्ट का जो मेन फोकस होता है वो हमेशा रीनल डोज एडजस्टमेंट्स के ऊपर होता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वो करें, बिकॉज अल्टीमेटली इफ यू आर नॉट डूइंग द रीनल डोज एडजस्टमेंट्स तो वो ड्रग एक्यूमुलेट होगी एंड एडीआरस भी आएंगे, टॉक्सिसिटी भी होगी। कुछ दवाइयाँ जो कि सबकी फिंगर एंड्स पे हैं विच आर नेफ्रोटॉक्सिक एंटीबायोटिक्स, दे इंक्लूड वेंकोमाइसिन, एसाइक्लोविर, एम्फोटेरिसिन, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स एंड कोलेस्टिमेथेट सोडियम। तो जब भी कोई ऐसी प्रिस्क्रिप्शन आती है जिनमें ये तमाम एंटीबायोटिक्स जा रही हैं तो आपके दिमाग में एक घंटी बजनी चाहिए कि यू नीड टू चेक द क्रिएटिनिन एंड मेक श्योर कि उस पेशेंट को जो है वो एडजस्टेड डोज मिल रही है। And similarly, hepatic dose adjustments are equally important because ये एक और साइट है जहाँ पे ड्रग मेटाबोलाइज हो रही है। अगर आप हेपेटिक डोज एडजस्टमेंट नहीं करते, इट विल ऑल्सो लीड टू ड्रग एक्यूमुलेशन एंड टॉक्सिसिटी, स्पेशली अगर उसका मेन जो रूट है मेटाबॉलिज्म का वो लिवर में है। सो द एग्जाम्पल्स ऑफ एंटीबायोटिक्स जो कि हेपेटोटॉक्सिक हो सकती हैं इंक्लूड टीजी साइक्लिन, द एटीटी ड्रग्स सच एज आइसोनियाजिड, रिफैम्पिन, एनाजोल एंटीफंगल्स। Vancomycin TDM इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। ये वो एरिया है कि जहाँ पे फार्मासिस्ट की एक स्पेशल कंसल्ट करवाई जा सकती है कि वो खाली आए और जो है वैंकोमाइसिन टीडीएम जो है उसको देखे कि ये प्रॉपरली हो रहा है या नहीं हो रहा। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द वैंकोमाइसिन टीडीएम एंड योर रोल इन दिस होल थिंग। सो इनिशियल वैंकोमाइसिन डोजेस जो है वो तो एक्चुअल बॉडी वेट के अकॉर्डिंगली होती है, इंक्लूडिंग द ओबीस पेशेंट्स। देयर आर टू मेथड्स। प्रीवियसली ज़्यादा हमारा फोकस जो है, इनफैक्ट अभी भी बहुत से इंस्टीट्यूट्स में यही है कि ट्रफ बेस्ड डोजिंग के ऊपर होता है। सो ट्रफ लेवल्स जो हैं वो टाइमली हुए या नहीं हुए, दैट इज़ अनदर इशू, बट द ट्रफ हैज़ इट्स ओन रेंज। मतलब 10 से 20 में रखना है या 15 से 20 की रेंज में आपने ट्रफ लेवल्स रखने हैं बेस्ड ऑन द इंडिकेशन। एंड इसके अलावा जो है अभी 2020 में जो लास्ट गाइडलाइंस आई थी, नाउ दे रिकमेंड के you should move towards the AUC by MIC based TDM because the patients in which they performed AUC by MIC based TDM, they had fewer cases of nephrotoxicity. So it depends. If you're not doing AUC by MIC, at least लाजमी आपको ट्रफ बेस्ड TDM तो करना चाहिए because this is a nephrotoxic agent and otherwise जो है ultimately patient जो है उसको AKI भी हो सकता है if it is not done. Yes, there are challenges in TDM और यहाँ पे ही फार्मासिस्ट के लिए अपॉर्चुनिटी है कि वो अपना जो है वो रोल जो है वो उसको साबित करे। पहली चीज है इनकरेक्ट डोजिंग। सो टू बिगिन विद वेट बेस्ड डोजिंग हो ही रही होती मोस्ट ऑफ द केसेस में, स्पेशली अगर आप लोडिंग डोज की बात करें और मेंटेनेंस की बात करें तो वेट बेस्ड डोजिंग की भी इश्यूज हैं। एंड देन एट द नर्सिंग साइड अक्सर जो है वो सैम्पलिंग जो है वो टाइमली नहीं होती। अगर फोर्थ डोज से हाफ एन आवर पहले सैम्पलिंग सजेस्ट की गई है तो वो या तो फिफ्थ डोज से पहले हो रही होती है या सिक्स से पहले हो रही होती है या इवन थर्ड से पहले। सो ये एक इशू आता है अक्सर और इनकरेक्ट एडजस्टमेंट्स भी होती हैं। इसके अलावा कुछ और एंटीबायोटिक्स हैं कि जिनका टीडीएम जो है वो करते हैं। हमारे यहाँ अमाइनोग्लाइकोसाइड्स जो है उनका टीडीएम भी किया जाता है, एमिकेसिन है, जेंटामाइसिन है। बाहर की कंट्रीज में बीटा लैक्टम्स का टीडीएम जो है वो भी किया जा रहा है। वोरिकोनाजोल का टीडीएम कुछ इंस्टीट्यूट्स में किया जाता है। Another thing which is important to keep in mind while you are trying to intervene is कि एंटीबायोटिक कहाँ पे जाके कॉन्सेंट्रेट हो रही है। अगर आपने, जैसे मैंने स्लाइड्स के शुरू में मेंशन किया कि अगर आपने अपनी तरफ से अकॉर्डिंग टू द कल्चर एंड ससेप्टेबिलिटी रिपोर्ट, अगर आपने अपनी तरफ से बिल्कुल ठीक एंटीबायोटिक दिया लेकिन वो उस जगह पे जाके कॉन्सेंट्रेट नहीं हो रही, सो इट्स नॉट गोइंग टू वर्क इफेक्टिवली at you might be seeing therapeutic failure. इसमें एक एग्जांपल, दो एग्जांपल्स मैंने कोट किए हैं। जैसे मैक्रोलाइड्स हैं, वो ज्यादा जो है वो लंग इन्फेक्शंस में इसीलिए प्रेफर किए जाते हैं बिकॉज दे कॉन्सेंट्रेट इन द पल्मोनरी मैक्रोफेजेस। सेफ्ट्राइक्सोन जो है, ऑल्दो इट इज अ हाईली प्रोटीन बाउंड ड्रग, लेकिन जब आप इसको हाई डोज में देंगे स्पेशली मेनिंजाइटिस के पेशेंट्स में
इन्फ्लेम मेनिंजीज हैं जहाँ पे, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो काफी अच्छी अचीव होती है, इवन अराउंड 200 mg/L. सो कीपिंग द कॉन्सेंट्रेशन डेटा इन माइंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे आपको काफी मदद मिलती है while you're trying to intervene. So, Mrs. XYZ, जिनकी एज है 58 years and she's a female, and she has a presenting complaint of frequent urination and discomfort during urination for the past 5 days. And her medical history includes hypertension, which is well controlled, no history of diabetes, and recurrent UTIs in the past. अभी current medication में she's only taking amlodipine 5 mg daily for hypertension, and her creatinine is normal, and there is no G6PD deficiency. The urine culture grows enterococcus और काफी significantly जो है वो ग्रो किया हुआ है, इसकी कॉलोनीज काफी ज्यादा हैं, सो दिस इज नॉट कॉलोनाइजेशन. एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी रिपोर्ट इंडिकेट कर रही है ये तमाम एजेंट से सेंसिटिव है, जैसे कि एम्पिसिलिन है, वेंकोमाइसिन है, नाइट्रोफेरेंटोइन, लेनाजर्ड एंड डॉक्सी. सो व्हाट वुड यू सजेस्ट? अब ये तमाम एजेंट्स जो हैं वो सेंसिटिव आ रहे हैं, तो आप क्या सजेस्ट करते हैं? आई वुड रियली अप्रिशिएट इफ यू आंसर इन द चैट बॉक्स. Okay, so vancomycin and ampicillin, because this is an OPD patient, तो हम ये नहीं देंगे because it would not be suitable for the patient कि वो घर में injectable दवाई लगवाए. Especially ampicillin तो दिन में 4 दफा लगवानी पड़ेगी, so no. And vancomycin is also nephrotoxic. डॉक्सीसाइक्लिन का इशू ये है कि ऑल्दो ये ओरली दी जा सकती है, पेशेंट के लिए आसानी है, बट द मेन रूट ऑफ एक्सक्रीशन इज फीकल. So minimal urine concentration would not make it suitable for treating this urine infection. Nitrofurantoin is a suitable option for treating cystitis. ये बहुत अच्छी concentrate होती है. The concentrations achieved in the blood and tissues are generally inadequate. However, जो blood stream से ये removal हो रहा है इसका through the kidneys and unchanged. So this is ultimately accumulating in the bladder. See, this is very important, and this is why we are giving it in this infections. So these are the factors which you should consider while you are trying to intervene. सबसे पहले microbiology क्या कह रही है, cultures क्या कहते हैं, yes, keep in mind. पर जैसे कि मैंने बताया कि उन cultures को दिमाग में रखते हुए also keep the site of concentration data in your mind. Indications should be evidence-based, and while keeping everything in mind, go for the narrowest possible agent. And dosage should be individualized based on the patient factors. Dose should be adjusted. Minimize the duration of therapy. Go for the shortest effective duration. Ensure the oral therapy is used whenever clinically appropriate. Don't unnecessarily go for the IV therapy because it is just linked with infections and cost. So now we are moving towards the second part of this presentation, which is common administration errors. So the first one is wrong route of administration, और ये अक्सर हमारी सेटिंग में अनफॉर्चुनेटली केसेस नजर आते हैं. इसमें आईवी एंटीबायोटिक्स को या तो इंट्राथीकली या इंट्रा एपिड्यूरली दिया जाता है, बिकॉज इंट्रावेंट्रिकुलर और इंट्रावीनस दोनों का सेम एब्रिविएशन है, तो अक्सर ये इशू हुआ है अनफॉर्चुनेटली. And the IV antimicrobials, they contain such excipients which can cause CNS toxicity. And oral suspensions can be given by IV if not given proper instructions to the nursing staff. IM injections जो हैं वो IV के तौर पे दिए जा सकते हैं, जैसे कि इसमें कुछ examples हैं. Benzathine, which is IM only, have been given through the IV route. And sometimes this happens कि nebs की dose जो है उसको IV के साथ confuse कर दिया जाता है. So 8 years old male, 25 kg weight hai, height is 1.3 meters, and the chief complaint is vomiting.
So, an 8-year-old boy presented with the father to the community pharmacy with a 1 day history of vomiting, and he stated that vomiting started after taking Augmentin, which he was taking for otitis media. He reported that the child couldn't drink the medicine and he vomited immediately. So, the past medical history includes respiratory tract infection a few years ago, no known drug allergies upon physical examination, and CBC is significant for high white blood cell count. So, what would be your intervention as a pharmacist in this case? Vomiting can obviously affect the adherence, and pharmacists play an important role कि वो इस adherence को improve कर सकते हैं either through counseling or through just switching the dosage form. So in this case, you can switch Augmentin to even ceftriaxone IM injections. That would be better. So this is just a case which I am sharing, and this is based on actual events. 65-year-old male patient जो कि COPD के साथ hospitalized हुआ है ICU में with severe ventilator associated pneumonia, and the sputum culture was showing Acinetobacter, which was only sensitive to colistin. So in this case, जो ज्यादातर physicians दे रहे होते हैं, that is colistin intravenous along with nebs. So what happened due to miscommunication uh, between the prescribing physician and the nursing staff, जो colistin nebs की डोज थी जो कि थोड़ी कम थी as compared to IV dose 1.5 MIU 12 hourly, it was misinterpreted as IV dose. So the patient was already on 4.5 MIU intravenous, और उसके साथ साथ जो है वो nebs भी उसको as IV route चले गए. So this was overdosing, and after 5 days of therapy, the creatinine started worsening, and the patient developed AKI. So here, the point of this case is कि route mention करना जो है और route identify करना, उसको intervene करना, that is very important. Another issue is, which we commonly encounter, is the wrong rate of administration. So, rate is equally important in a way कि therapeutic effect जो है वो इस पे rely करता है. Administering too quickly or too slowly can result in ineffective treatment or even failure. And then, of course, बहुत जल्दी कुछ दवाइयाँ infuse करने से जो है वो infusion related reactions आते हैं. एंड जो है स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इश्यूज भी हैं, जैसे थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस है, etc. So this patient, she's a 54-year-old female, and she was admitted for suspected MRSA pneumonia, and her treatment included vancomycin 1 gram. And she was administered vancomycin, but shortly after the infusion, she developed this erythematous rash, flushing, and pruritus. So what happened that the doctor immediately labeled this as vancomycin allergy, and the therapy was switched to linezolid. So in this case, the infusion reaction was not the only tragedy. The actual tragedy is कि आपने patient को vancomycin allergy label कर दिया और अब वो पूरी जिंदगी उसको vancomycin नहीं लगेगी, and you unnecessarily you're prescribing a broad spectrum antibiotic. So यही हुआ कि upon investigation it was revealed कि vancomycin जो है वो over 30 minutes infuse किया गया, जो कि अक्सर होता है, and this was an infusion related reaction. So in this case, you simply have to slow down the rate of infusion and monitor the patients. अक्सर जो है वो slow down हमें 2 घंटे तक पे करना पड़ता है, because in few cases जो है वो इस पे भी patient की जो redness है वो कम नहीं होती. But hypotension, shock, and cardiac arrest cases have also been reported with too rapid infusion. So education of the nursing staff is important in this case. वैंकोमाइसिन इन्फ्यूजन रिएक्शन के साथ साथ और भी एंटीबायोटिक्स हैं जिनके साथ हमें इन्फ्यूजन रिएक्शंस जो है वो नजर आते हैं. इसमें एक कॉमन एग्जांपल जो है वो हमारे हॉस्पिटल में फ्लोरोक्विनोलोन्स के साथ
जो हमें पेश आ रही थी कि बार बार फ्लोरोक्विनोलोन्स एसोसिएटेड, जिसमें सिप्रो भी थी, लीवो एंड मॉक्सी। एज यू कैन सी 5 केसेस ऑफ मॉक्सी वर रिपोर्टेड। तो हमें इन्फ्यूजन रिएक्शंस जो हैं वो रिपोर्ट हो रहे थे। सो वी इन्वेस्टिगेट अपॉन एवरी एडीआर। जब भी हमें कोई एडीआर रिपोर्ट किया जाता है तो हम उसको प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करते हैं, एंड अपॉन इन्वेस्टिगेशन ऑफ कोर्स वी रियलाइज दैट द एक्चुअल इशू, द बेसलाइन इशू वाज with the wrong administration rate. So what you can do as a pharmacist, you can make these sort of medication safety alerts, and you can distribute among your hospital healthcare professionals just to educate them. So there's another scope of intervention, which happens very frequently, especially among the pediatric population, के जो properly उनकी powder है for reconstitution, that is not properly reconstituted, and sometimes the diluents are not proper, जो कि हम IV antibiotics के लिए use करते हैं. So Mrs. John Doe, which is a 65-year-old male with chronic kidney disease, he presented with a urinary tract infection. So fosfomycin IV was prescribed and it was diluted in normal saline. Over the next 3 days, Mr. Doe developed symptoms of confusion, excessive thirst, and muscle weakness. और जब sodium levels करवाए गए तो they were pretty high, 157, which confirmed hypernatremia. So what could be the actual cause of this hypernatremia? So the treatment actually includes discontinuing the diluent, which is normal saline, or बजाय normal saline के you should give D5 water to correct the sodium imbalance. Carefully monitor the renal function. So sodium जो है वो already fosfomycin के अंदर काफी ज्यादा होता है. 1 gram actually contains 14.4 MEQs. और जैसे कि मैंने एक पिछली स्लाइड में मेंशन किया, इसकी काफी हाई डोजेस होती हैं, इवन अप टू 24 grams. सो 10 ग्राम का मतलब है कि आप उसको 1 लीटर नॉर्मल सलाइन इन्फ्यूज कर रहे हैं. सो इफ द पेशेंट ऑलरेडी इज हाइपरनेट्रीमिक या उसके अंदर कोई बेस लाइन रिस्क फैक्टर है, जैसे इस पेशेंट में क्रॉनिक किडनी डिजीज थी, तो आप ऊपर से एक एंटीबायोटिक दे रहे हैं जिसमें ऑलरेडी सोडियम कंटेंट है, और फिर आपने डाइल्यूएंट भी ऐसा दिया है जिसमें सोडियम कंटेंट है, तो डेफिनेटली पेशेंट वुड अल्टीमेटली डेवलप हाइपरनेट्रीमिया. सो यू हैव टू कंसिडर दिस इन पेशेंट्स जिनमें ये तमाम रिस्क फैक्टर्स हैं. Another issue is of the mistoses, and mistoses एक बहुत frequently encountered issue है हमारी setting में. It leads to subtherapeutic levels, और ultimately जो है वो resistance की तरफ ये चीज जाती है. Prolonged hospital stay and poor outcomes also add up. So prevention strategies में of course if the patient is OPD patient, then आपने उसको properly counsel करना है कि कोई भी dose miss नहीं होनी चाहिए. लेकिन hospital staff के among you can use different sort of technologies and system based alerts generate हो सकते हैं. So you have to properly review medication administration practices. So this is a case of missed dose of vancomycin, and this is again based on true events. A 58-year-old female patient presented with diabetic foot osteomyelitis, and she was started on IV vancomycin for MRSA. So her initial dose was 1 gram 12 hourly, which is fine. It was adjusted for her weight and normal renal function. Therapeutic drug monitoring की गई, और ट्रफ लेवल्स जो थे they were appropriate. On third day of therapy, scheduled vancomycin dose जो थी वो मिस हो गई, and this was probably due to some nursing oversight. And उसके बाद जो दोबारा ट्रफ लेवल्स लिए गए, they were just below the target. They were 6, and हमारा टारगेट था 15 to 20 because this is osteomyelitis. So unaware of the missed dose. अब डॉक्टर को नहीं पता है कि डोज मिस हो चुकी है नर्सिंग एंड से. He is just assuming that the patient has been receiving it 12 hourly. So the treating physician attributed the low levels to suboptimal dosing, and he increased the dose of vancomycin. डोज बढ़ाने की जरूरत नहीं थी इस केस में, because what will happen over the next week, the patient's renal function began to deteriorate with the serum creatinine rising from 0.9 to 2. रिपीट टीडीएम जब किया गया तो उसमें vancomycin trough levels they jumped from 6 to 32, which was very unfortunate, and the patient was diagnosed with AKI. So this is how
द होल चेन गोज, मतलब ये एक पूरा चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है कि एक मिस डोज की वजह से अल्टीमेटली पेशेंट को कैसे AKI डेवलप हुआ, एंड द ओनली इशू वाज मिस डोज. Another thing which you should consider while you are dealing with the antibiotics orders is the food interactions, और हम अक्सर food interactions को ignore कर देते हैं. So three factors must be kept in mind: the food, the gastric acidity, and the chelating agents. कुछ एंटीबायोटिक्स जो हैं वो खाने के साथ उनकी एब्जॉर्प्शन जो है वो अच्छी है, कुछ की नहीं अच्छी, while most of the antibiotics they have minimal effect. एंड स्मॉल ग्रुप जो है इसमें देयर एब्जॉर्प्शन इज अफेक्टेड बाय द गैस्ट्रिक पीएच, जैसे कि इट्राकोनाजोल है, पोसाकोनाजोल है, कुछ anti-HIV दवाइयां हैं. तो इनको आपने प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स के साथ नहीं देना है. यू हैव टू कीप दैट इन माइंड. एंड देन ऑफ कोर्स द लास्ट टू क्लासेस, टेट्रासाइक्लिन्स एंड फ्लोरोक्विनोलोन्स, वी नो कि हम इनको जो है मिनरल्स के साथ नहीं दे सकते, चिलेटिंग एजेंट्स के साथ, जैसे कि कैल्शियम कंटेनिंग एजेंट्स हैं, iron, aluminium, zinc, etc. So improper storage is another issue जो कि again ignore होता है. अब improper storage से क्या होगा? The antibiotic would lose its efficacy. Active ingredients की degradation की वजह से ultimately you would not be able to treat the infection. इसमें कुछ harmful byproducts भी बन सकते हैं, जैसे कि tetracyclines जो हैं उनकी अगर properly storage आपने नहीं की, because they're light sensitive, so they can degrade to nephrotoxic compounds. एंड अल्टीमेटली ये सब चीजें जो है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की तरफ कंट्रीब्यूट कर रही हैं बिकॉज ऑफ द सब थेरेप्यूटिक डोजेस. एंड ऑफ कोर्स पेशेंट कैन हैव द एलर्जिक रिएक्शंस, क्योंकि ये हार्मफुल प्रोडक्ट्स एक तरह से उसमें जो बाय प्रोडक्ट्स बन रही हैं, दे कैन ट्रिगर द एलर्जिक रिएक्शंस. सो हीट सेंसिटिव, लाइट सेंसिटिव, एंड देयर आर सर्टेन जैसे कि रिकॉन्स्टिट्यूटेड ओरल सस्पेंशंस हैं, उनको रेफ्रिजरेशन की भी जरूरत पड़ती है. सो दीज थ्री फैक्टर्स मस्ट बी केप्ट इन माइंड. फिर आ जाती है एडमिनिस्ट्रेशन विदाउट चेकिंग द कंपैटिबिलिटी. इसमें एक कॉमन एग्जांपल जो कि आई एम श्योर मेजॉरिटी ऑफ द पीपल दे नो इट, कि सेफ्ट्राइक्सोन को कैल्शियम कंटेनिंग सॉल्यूशंस के साथ नहीं देना बिकॉज क्रिस्टल्स बन जाते हैं. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी. और केमिकल में बज़ाहिर आपको नजर नहीं आ रहा है, कोई प्रेसिपिटेट नहीं बन रहा है, लेकिन जो डिग्रेडेशन है वो हो रही है. For example, aminoglycosides are inactivated when they are mixed with beta lactams in the same IV line or syringe. एंड इसके अलावा कुछ और एग्जांपल्स हैं, जैसे ड्रग सोल्यूशन इनकम्पैटिबिलिटी है. एम्फोटेरिसिन बी इज इनकम्पैटिबल विद सेलाइन एंड इट मस्ट बी एडमिनिस्ट्रेड इन डेक्सट्रोज वाटर. एंड देन थेरेप्यूटिक फेलियर में एक एग्जांपल है कि पिपरासिलिन, टेजोबैक्टम और वेंकोमाइसिन सेम आईवी लाइन में अगर आप देंगे तो दोनों की जो एक्टिविटी है वो कम हो जाएगी. इसमें भी जो एडवर्स पेशेंट आउटकम्स हैं दे इंक्लूड टिश्यू डैमेज, एंड इसमें के चूंकि हम उनको दे रहे होते हैं पेरिफेरल आईवी लाइंस के थ्रू, सो इट कैन लीड टू लोकल साइट रिएक्शंस एंड ऑफ कोर्स सिस्टमिक रिएक्शंस. इनकम्पैटिबिलिटी कैन ऑलवेज लीड टू एम्बोलिज्म, हाइपोटेंशन. एंड अल्टीमेटली क्या होगा कि फॉर एग्जांपल अगर ड्रिप में प्रेसिपिटेट्स बन गए हैं, वो चीज़ वापस फार्मेसी में जाएगी या नर्सिंग एंड पे जाती है और वो दोबारा से प्रिपेयर होगी. देयर वुड बी अ डिले इन ट्रीटमेंट एंड अल्टीमेटली वर्कलोड भी बढ़ रहा है. सो दिस इज नॉट ओनली एन इशू फॉर द पेशेंट, दिस इज ऑल्सो एन इशू फॉर द स्टाफ. So summarizing all these contributing factors, तो सबसे पहले इशू अराइज क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ नॉलेज, द लैक ऑफ फेमिलियरिटी विद द गाइडलाइंस. सो प्लीज एजुकेट योरसेल्फ, एजुकेट द स्टाफ अराउंड यू, एजुकेट द पेशेंट्स. कम्युनिकेशन गैप, तो बहुत सी चीजें, जैसे कि मैंने बहुत केसेस इसमें ऐड किए जिसमें बहुत से केसेस सिर्फ इसलिए हो रहे हैं क्योंकि या तो डॉक्टर और फार्मासिस्ट के बीच में कम्युनिकेशन गैप है, या डॉक्टर नर्सिंग के एंड पे कम्युनिकेशन गैप आ रहा है. वर्कलोड एंड स्टाफिंग इशू में बहुत से एरर्स हो जाते हैं. दिस इज something which we can deal with, and this can be minimized to some extent. And then of course system and documentation issues, properly उसको सुना नहीं, transcribing errors हो गए, उसको आप किसी को verbally बता रहे हो, सुनने में issue हो गया. So there can be any issue which can happen.
स्ट्रैटेजीज क्या हो सकती हैं हमारी? अडॉप्ट द एंटीबायोटिक स्टewardship प्रोग्राम्स। इसमें बहुत सी चीजें तो आपकी एंटीबायोटिक स्टewardship प्रोग्राम के थ्रू ही केटर हो जाएंगी, जैसे रीनल डोज एडजस्टमेंट्स हैं, आपकी एंटीबायोटिक डोज ऑप्टिमाइजेशन हो गई, बग ड्रग मिसमैचेस हो गए, ये सब आप इन प्रोग्राम्स के थ्रू जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं और उनको साथ साथ केटर भी कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स एडमिनिस्ट्रेशन प्रोटोकॉल्स को स्टैंडर्डाइज कर दें, प्रोटोकॉल्स बनाएं और इनको जगह जगह लगाएं, नर्सिंग स्टाफ के सामने, फ्लोर्स पे इनको जो है अवेलेबल करें फॉर द नर्सिंग स्टाफ एंड फॉर योर फार्मेसी स्टाफ। यूज टेक्नोलॉजी, आजकल एआई का जमाना है, सो यूज द अलर्ट सिस्टम बेस्ड डिसीजन सपोर्ट सिस्टम्स, जो है ये सब यूज करें टू मिनिमाइज दीज एरर्स। Improving the documentation, improving the communication, it goes a long way. And educating your staff, लास्ट बट नॉट द लीस्ट एजुकेटिंग द पेशेंट, बिकॉज अल्टीमेटली ये सब चीजें जो है ये पेशेंट भुगत रहा है, तो आपने पेशेंट को भी एजुकेट करना है। सो ऑप्टिमाइजेशन का फायदा नहीं है अगर तो पेशेंट की एडहेरेंस ही प्रॉपर नहीं है, स्पेशली जो क्रिटिकल डिजीजेस हैं जिसमें एडहेरेंस जो है गोज अ लॉन्ग वे, जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस है, HIV इन्फेक्शंस हैं। सो एजुकेशन plays a huge role in this case. Thank you for your attention.